آج کی ویڈیو تمہارے مین مسائل پر، نہ کوئی بڑی بڑی باتیں، نہ کوئی موٹیویشن، نہ کچھ اور۔ میرا کام سائیکالوجی کا ہے کہ جو بھی باتیں ہوں ان کے پیچھے سائیکی کیا ہوتی ہے، کیا مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں، میرا کام صرف ان کو واضح کرنا ہے۔ تو ایسی وجہ کیا ہے کہ غریب انسان دن بدن غریب ہوتا جا رہا ہے؟ آخر انسان کو چاہیے ہی کیا؟ ہر انسان کو بیسیکلی اس کو پہلے تو کچھ بنیادی نیڈز ہیں جن پر یہ امیر لوگ، طاقتور لوگ بھی ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اور جس حد تک وہ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سب سے بیسک چیز جو انسان کو چاہیے اور جس کے بغیر انسان جو ہے وہ 10 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا، وہ آکسیجن ہے، ہوا ہے۔ تو وہ ان طاقتور لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ اس ہوا کو روک دے، لیکن اس میں بھٹوں کا دھواں، گاڑیوں کا دھواں اور فیکٹریوں کا دھواں، تو جہاں تک ہو سکے یہ پاورفل لوگ اس ہوا کو بھی خراب کرنے کی پوری کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہوا کے بعد دوسری چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ پانی ہے۔ اب پانی بھی اتنی زیادہ مقدار میں ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے یہ پاورفل لوگ اس پر بھی کنٹرول کر کے لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد جو بنیادی نیڈز آتی ہیں انسان کی، وہ روٹی ہے، وہ خوراک ہے، وہ کپڑے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں انسان کی بنیادی ضرورت ہو گئی، ہوا، پانی، روٹی، یہ بنیادی ضروریات ہیں، یا کپڑے ہو گئے۔ تو یہ چیزیں ایک غریب کو بھی چاہیے۔ اب ہوا تو فری مل گئی، پانی بھی بعض لوگوں کو فری مل گیا یا اس کی تھوڑی قیمت دینی پڑی، لیکن روٹی فری میں نہیں ملتی اور نہ ہی کپڑے فری میں ملتے ہیں۔ تو ان دو چیزوں کے ذریعے ہی غریبوں پر کنٹرول بنایا جا سکتا ہے۔ جس کو آپ کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آ سکتا۔ اسی لیے سب سے پہلے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں بھی آپ کے لیے ضروری ہیں، یہ بھی ضروری ہیں۔ بنیادی طور پہ میں نے سب سے مین بات آپ کو بتا دی ہے کہ بنیادی طور پہ انسان کو روٹی، پانی، ہوا وغیرہ چاہیے۔ اس کے بعد انسان ایک معاشرتی جانور ہے، معاشرے میں رہنے والی چیز ہے۔ تو جہاں زیادہ لوگ ہوں گے تو ان سے پھر مسائل بھی پیدا ہوں گے، ایک دوسرے سے وہ اپنی ضروریات لین دین کرتے ہیں۔ تو جب اس میں کوئی کمی بیشی ہوگی، کوئی اختلافات پیدا ہوں گے، تو ان کو کنٹرول کا بھی جو سسٹم بنایا جاتا ہے، اس میں جو سسٹم کے اوپر مین کنٹرولر ہوتے ہیں وہ بھی پھر سلیکشن شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ جو عوام ہوتی ہے وہ ان کو چوز کرتی ہے کہ آپ لوگ بیٹھیں اور ایمانداری سے فیصلہ کریں، جو غلط کرتے ہیں ان کو سزا دیں اور جو ٹھیک کرتے ہیں ان کو بچائیں۔ میرے دوست، تمہارے سارے جتنے بھی مسائل ہیں یہ فنینشلی لیول پہ ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے سائیکی لیول پہ ہوتے ہیں۔ تمہارے ذہن میں ڈیفرنس ڈالے جاتے ہیں، اور یہ پاورفل لوگ جن کو بھی تم، کیونکہ کبھی بھی طاقتور کو برا نہیں کہا جاتا۔ اگر آپ کسی قریبی عزیز رشتہ دار کا تصور کریں، کسی بھی کہ جس کے پاس بہت پیسہ ہے، تو کتنے رشتہ دار اسے برا کہتے ہیں، اس میں 101 برائی ہوگی، لیکن پاور کی کبھی کوئی برائی نہیں کرتا۔ تو جو طاقتور لوگوں نے تم کو سبق دیے ہیں، تم ان کو دہراتے رہتے ہو اور انہی کو اپنی آئیڈیالوجی بناتے رہتے ہو۔ تم جن لوگوں کو بڑے عظیم سمجھتے ہو، بڑے بہترین سمجھتے ہو، انسان کی سائیکی ہے نا کہ وہ اپنے سے بہتر بندہ دیکھے گا کہ اس کے پاس گاڑی اچھی ہے، اس کے پاس گھر اچھا ہے، میرے سے بڑا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے تمہارا ہی خون نچوڑ کے وہ بنایا ہو، تمہارے جیسے ہزاروں کو اس نے نچوڑا ہو، پھر جا کے اس نے یہ گھر کھڑا کیا ہو۔ لیکن اس نے ایک بار یہ گھر کھڑا کر لیا تو وہ نیچے والے طبقے کو اس قابل چھوڑے گا ہی نہیں کہ وہ نیچے والا طبقہ سوال کر سکے۔ تو جتنے لوگ بھی جن کو تم بہت محسن مانتے ہو، پہلے نمبر پہ یہ دیکھنا کہ وہ فنینشلی امیر ہوں گے، اور ان کے مین ریسورسز پر جب تم فوکس کرو گے تو وہ تمہیں بہت اچھے کریکٹر کا انسان بھی نہیں ملے گا۔ لیکن جب تک تم انہیں
काबिल एहतराम समझते रहोगे तब तक कभी कोई मसला हल नहीं हो सकता। देखो, जब तुम पैदा हुए थे, तुम सब लोग जितने भी जब पैदा हुए थे, एक मखसूस तुम्हारे इर्द गिर्द माहौल था। तब किस चीज़ का? पाकिस्तान में थे, किसी डिक्टेटर का दौर था, या फिर किसी बराए नाम जमहूरियत का दौर था। तो जो चीज़ ऊपर होती है वही मुख्तलिफ़ प्रोसेस से होती होती नीचे पहुंचती है। इसीलिए हर एक घर घर में डिक्टेटर तब थे, सन 2000 से पहले पीछे, उसके बाद भी हैं, अक्सर घरों में आज भी हैं कि जो मर्द है वो घर में पूरा डिक्टेटर बना होता है। और इन लोगों के घरों में डेमोक्रेसी नहीं, जिनके घरों में जमहूरियत नहीं। जमहूरियत है क्या कि हर बंदे को आज़ादी से अपनी राय रखने का हक़ है, और जो बंदा जो करना चाहे वो करने में आज़ाद है। दूसरों की आज़ादी डिस्टर्ब ना करे और हर एक की आज़ादी का एहतराम किया जाए और सबको बराबर की वैल्यू दी जाए। इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं, इसी को जमहूरियत कहते हैं। जब अवाम मिल जाती है तो जो एक स्ट्रेंथ बनती है उसे जमहूरियत, डेमोक्रेसी इस तरह के नाम दे सकते हैं। तो जब मेरे दोस्त तुम ऐसे माहौल में पैदा हुए एक घर में, तो तुम्हें पैदाइशी तौर पे एक स्ट्रक्चर दे दिया गया कि ये तुम्हारी हदूद हैं, तुम इस मज़हब के हो, तुम इस नस्ल के हो, इस शहर के हो, इस इलाके के हो। ये तुमने निसाब पढ़ा और वो सब पढ़ के समझ के जो तुम इंसान बने, जो तुम्हारी ज़ात बनी, तो वो क्या नज़रिया और क्या अपनी सोच रखेगा? उसने कोई अपनी सोच कहीं डाली क्या? क्या इंडिपेंडेंट थिंकिंग किसी को सिखाई जाती है? और इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी आ भी कहाँ से सकती है, जबकि पैदाइशी तौर पे तुम्हें ये बता दी जाए ये करते हैं, ये नहीं करते, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गुनाह है, ये सवाब है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। क्या कैसे है? मैं बड़े से भी बड़े लास्ट टॉप 3 इंसान से ये पूछता हूँ, प्रोफेसरों के भी प्रोफेसरों से पूछता हूँ कि क्या है अच्छा, क्या है बुरा, किस चीज़ को तुम अच्छा कहते हो, किस चीज़ को तुम बुरा समझते हो कि ये बुरी है। ओ भाई, तुम एक कुएं में पैदा हुए, एक मखसूस नज़रिया सोच लेके पैदा हुए कि ये हमारा लिमिट्स हैं, ये हमारा दायरा है, ये हमारा मज़हब है, ये हमारा फ़लाना है, ये हमारी ज़ात है, हमारी ज़ात बहुत बड़ी है, हमारा मज़हब बहुत बड़ा है। लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन है। और फिर सिर्फ़ एक ही मज़हब तो नहीं, एक ही एरिया तो नहीं, थोड़े से एरिए बाद देखोगे तो कोई और मज़हब आ जाएगा। यहाँ पाकिस्तान है, ये साथ इंडिया है, साथ चाइना है, इधर ईरान है, अफ़गानिस्तान है। तो डिफरेंट नज़रियात हर जगह आ जाते हैं और हर एक का अपना सही और अपना गलत है। जितने मर्ज़ी तुम कुएं में पैदा हो के उस कुएं को क्या ही जानोगे कि वो तो एक कुएं की लैंग्वेज थी। तुम्हारे नज़रियात, सोचें जो कुछ भी हैं वो एक दायरे में ही हैं। फ़र्ज़ करें कि मज़हब का दायरा बन गया, तुम्हारा ये फ़लाना एक मज़हब है, उसकी ये लिमिट्स हैं, उसमें ये है, तो वहाँ बुद्ध मत चल रहा है, वहाँ हिंद मत चल रहा है, वो भी अपने अपने दायरे हैं, वो भी अपने को दुनिया का सबसे बेस्ट मज़हब का ऐलान करते हैं। तो उनका अपना सही और गलत है। तो ये सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ, मैं कोई आपका उस्ताद नहीं, एक फ्रेंड की तरह बात कर रहा हूँ कि जो चीज़ें सही और गलत, यहाँ जो सही है वहाँ इंडिया में गलत है, चाइना में गलत है, और जो कुछ चाइना और इंडिया में सही है यहाँ गलत है। अब यूरोप में वहाँ औरतें वगैरह जो है बीचेस पे नहाने जाएंगी तो वहाँ पे वो नॉर्मल है, यहाँ नॉर्मल नहीं है, तो वहाँ पे वो अच्छा है, यहाँ पे वो अच्छा नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा है और ये बुरा है।
असल में हम ये कह रहे होते हैं कि मेरे मुताबिक ये अच्छा है और मेरे मुताबिक ये बुरा है। अच्छा और बुरा कोई हकीकत नहीं है और ना हकीकत में कुछ अच्छा बुरा हो सकता है। ये इलाके और जगह के हिसाब से बदलते रहते हैं। ये बात कोई प्रोफेसर, कोई बंदा करता हुआ पूरे पाकिस्तान में मुझे दिखाई नहीं दे रहा और ना ही कोई कर सकता है। इतना ब्रॉड माइंडेड कोई हो कैसे सकता है, इतनी आज़ाद थिंकिंग कोई कर कैसे सकता है। जो कुएं में पैदा हुआ वो कुएं पे सवाल कर कैसे सकता है। तो इसीलिए सब अपने अपने कुओं की तारीफ़ें करते हैं और अपने अपने कुओं में रहते हैं और अपनी अपनी अच्छाई बुराई बनाते हैं। और जो मेन बेनिफिशरी होते हैं वो अपने नीचे सारे तबके को बड़ा प्योर करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारा कसूर है, तुम गुनहगार हो। आम आदमी बेचारे के पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं हैं और वो दिन रात कह रहा है कि मेरे गुनाहों का अज़ाब मुझ पे पड़ गया, ये मेरे गुनाह ही हैं। और दूसरे मलेड़े उसको और भी बताएंगे कि तुम और गुनाहगार हो, और माफ़ी मांगो, और माफ़ी मांगो। वो बेचारा रोता तरसता तड़पता रहेगा, लेकिन उसके पास और आइडियालॉजी ही क्या है। उसने बचपन से यही तो देखा था और जो वो कर रहा है वो अपने आप को कोसते कोसते मर जाए। मरने पर भी उसे कोई अच्छा नहीं कहेगा। अगर उसने ताकत पैदा कर ली, पहचान पैदा कर ली, तो फिर वो शराब पिए, गनाह करे, जो मर्ज़ी करे। ताकतवर को सब अलाउ होता है, वो इबादतें करे या ना करे, इबादतों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब उसने ताकत पैदा कर ली, घर गाड़ियाँ रख ली, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी और वो रिस्पेक्टेड पर्सन होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि तुम इस सिस्टम को समझो कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। मेन बेनिफिशरी तुम्हें इस सिस्टम की कभी भी समझ आने नहीं देंगे। और ये सिस्टम है क्या कि लोगों को उनकी सोच को मौजूदा मकाम से हटा दो। मसलन एक मिसाल से बात समझाता हूँ। मैं सब्ज़ी मंडी में अगर काम करता हूँ तो वहाँ सब्ज़ी से मुझे लाखों रुपए बच रहे हैं। अब जो लेके आते हैं उनको 100-200 रुपया बच रहा है, तो मैं उनको ये समझा के रखूँ कि शुक्र करो ये 100-200 बच रहा है, मुझे तो ये भी नहीं बच रहे, तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैं तुम्हारा माल रख लूँ और वो मेरा एहसानमंद रहे कि अच्छा हुआ इसने मेरा सामान रख लिया। तो इस तरह मैं उसे लूटता भी रहूँगा और उस पे एहसान करने वाला भी रहूँगा, उसका मोहसन भी बना रहूँगा और वो मेरी हर जगह तारीफ़ें भी करता रहेगा क्योंकि उसे 200 रुपया मेरी वजह से मिल रहा है। ऐसे ही सिस्टम बना हुआ है। तुम्हें जैसे चीज़ लेने जाते हैं तो बाद में देते हैं ना चुंगा, तो तुम्हें चुंगा दे दिया जाता है और तुम उसी में चुंगा देने वालों की तारीफ़ें करने लग जाते हो और मेन बेनिफिट्स खुद रख लिए जाते हैं। लेकिन तुम जब तक उनको ये समझते रहोगे कि ये बड़े मोहसन और अजीम लोग हैं, असल में कोई बंदा भी, हर एक की बुनियादी नीड्स हैं और अपने पर्सनल मामलात हैं, फैमिली है, घर है और वो भी सब में बेहतर ख़ुद को साबित करना चाहता है कि ये देखो गांव में 500-700-1000 लोग हैं, ये बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे, देखो मैंने कार ले ली, कितनों ने कार ली है, मैं ज़रा अप फीलिंग ले सकूं। इसी चक्कर में जो है हर बंदा कोशिश करता रहता है। जब तुम इस सिस्टम को समझोगे, कोई भी बड़े से बड़ा अजीम इंसान नहीं होता, मामलात अपने ज़ाती होते हैं। अब तुम किसी बड़े से बड़ी चौधरी पंचायत वाले बंदे की बात करो, हर फैसले में उसने मैंने ये कह दिया, मैंने उसे ऐसे कहा था, मेरी बात नहीं मानी, अपनी मेरी ज़ात, मेरी सोच, मेरा नज़रिया, मैंने ये कह दिया, मैंने वो कह दिया। तुम्हारे सारे चौधरी अपनी मैं से आज़ाद ही नहीं है, जो अपनी ज़ात में ही घूमते रहते हैं
तुम उनको चौधरी बना के बैठे हुए हो, उनको अजीम मान रहे हो। तो जो बंदा अपनी ज़ात से निकला नहीं, मैं ये समझता हूँ कि वो अभी बच्चा है, वो तो अभी पैदा अभी हुआ है। जो सिर्फ़ अपनी मैं मेरा ये मेरा वो, मैंने वो कह दिया, फ़लाने ने मेरी बात नहीं मानी, मैं उससे नाराज़, हर चीज़ मैं के गिर्द घूम रही। और इन लोगों को तुम अजीम समझते हो। मेरे दोस्त, होश में आओ। तुम वही पर्सनैलिटी हो जिसे तुम बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़ज़, अजीम, पैसे वाला जो भी समझते हो। तुमने किसी का हक नहीं खाया, उसने हो सकता है खाया हो या ना हो, ये उसका मामला है, लेकिन तुम उससे किसी सूरत भी कम नहीं हो। तुम्हारा भी दिमाग है, तुम्हारी भी अपनी सोच है, अपने मामलात हैं, जिसने जो मामलात जिस तरह डिज़ाइन किए। लेकिन जब तुम्हें एक दायरे में पैदा हुए और उस दायरे पे सवाल ही नहीं कर पाते, और करना आना भी कहाँ से है कि तुम सिर्फ़ उसी में घूमते रहे और पूरी ज़िंदगी उसी में घूमने पे वैलिडेशन बड़ों ने दे दी कि बड़ा अच्छा बच्चा निकला है, हम इस नज़रिए को मानते थे, ये बच्चा भी इसी नज़रिए को मान रहा है और बड़ा एक्सट्रीमली मान रहा है। बस इसी में उसको वैलिडेशन, ये नहीं देखा कि उसकी ज़िंदगी के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, उसकी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। नहीं, उसको इस चीज़ पे वैलिडेशन दे दी कि देखें गुर्बत में भी जो है वो अच्छा है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता यूँ होता है कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि वो फाकों तक जा पहुँचता है। वो इसकी रीज़न पे सवाल करने के लायक बचता ही नहीं है। सो सबसे पहले ये देखना कि ठीक है, मैं जहाँ पैदा हो गया, ये एक इलाका है, यहाँ ये चलता है, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से इलाके हैं और पूरी दुनिया में बहुत कुछ चलता है। ये बात सोचते ही तुम एक आज़ाद इंसान हो गए कि ठीक है, मज़हब है, दुनिया में बहुत सारे हैं और सब आपको परफेक्ट समझते हैं, तो ठीक है, ये भी एक चीज़ है, इसको एक्सेप्ट किया जाए। तो ये एक ख़ित्ता है जहाँ हम रह रहे हैं, हम इसको बड़ा बेस्ट समझते हैं, ये दुनिया का मेन मरकज़ समझते हैं। तो बहुत सारे मुल्क हैं जो अपने आप को मेन मरकज़ समझते हैं, तो ये भी एक सोच है। और तीसरे नंबर पे आप ये सवाल करते हैं कि जो कुछ मुझे बड़ों ने दे दिया मैं वही दोहराता रहा और उसी पे वैलिडेशन मिल गई, तो मैंने फिर कौन सा तीर मार लिया, खुद से तो कुछ पैदा नहीं किया। तो ख़ुद अपनी सोच को, दूसरों को भी, सबको सुनें और ख़ुद अपनी थिंकिंग डेवलप करें। तो सिंपली अगर मैं मुख्तसर बात करूं तो गरीब जो है वो गरीब अपनी सोच की वजह से है, और अमीर जो है वो अमीर अपनी सोच की वजह से है। इन दोनों ने कौन कौन से ज़िंदगी में रास्ते लिए। जब बच्चा पैदा हुआ था ना तो वो मिलियनियर था और ना वो गरीब था, दोनों के पास 2 टांगे, 2 हाथ, 2 आँखें ही थी। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो दोनों के हालातों वाक़यात डिफरेंट थे, और दोनों ने जो रास्ता लिया वही डिसाइड करेगा कि दोनों अमीर होंगे या एक अमीर होगा और एक गरीब होगा, या दोनों जो इंसान ने ज़िंदगी में फ़ैसले लिए वो इंसान का रास्ता का इंतखाब करेंगे। लेकिन अमीर हो या गरीब, जब तक वो कुएं में ही घूम रहा है, जो सोच नज़रिया मिला उसी को लेके मर गया और अपनी कोई सोच, थिंकिंग डेवलप की ही नहीं कि ज़रूरत ही क्या है, वो तो दुनिया का ख़ुद को मेन मरकज़ ही समझता हुआ मर गया। तो दुनिया इतनी बड़ी थी, इतना कुछ था, और वो समझ सोच सकता था और अपने आप से आज़ाद हो सकता था, लेकिन वो आज़ाद हो के नहीं मरा। वो एक कुएं का ग़ुलाम हो के मरा। जैसे कुएं में पड़ा मेंढक ऊपर देख के कहता है कि ये कुआं सबसे बेस्ट, इस जैसा और नहीं कोई हो सकता, ये जो कुआं है बड़ा ज़बरदस्त है। साथ में एक और कुआं है, वो इससे थोड़ा बड़ा है, लेकिन वो साथ वाले कुएं को मानता ही नहीं, वो उसको तस्लीम ही नहीं करता। वो कहता है जो इस कुएं में आएगा मग़फ़रत उसी की है। वो कुएं होंगे, वो बड़ा ताकतवर कुआं है, वो बड़ा कुआं है, होगा, हम नहीं मानते। ये जो मेरा कुआं है ना, ये सबसे बड़ा बेस्ट है। इस में जो हैं वो बचे हुए हैं, जो इस कुएं में नहीं हैं वो बचे हुए नहीं हैं।
یہ تمہاری اپنی سوچ نہیں ہے. جو ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. میرا کام کوئی غلط اور صحیح بتانا نہیں ہے. اور جیسے میں پہلے بتا بھی چکا ہوں کہ دنیا میں کچھ بھی صحیح اور غلط مور لگا کے نہیں ہو سکتا. تم کوئی بھی ایسی بات بتا دو، وہ کہیں نہ کہیں تو غلط ہوگی ہی. بنیادی چیزوں کے علاوہ کچھ اچھا برا نہیں ہوتا. ایسی چیزیں جو انسان کے جسم کو فائدہ دیں وہ اچھی ہیں، اور جو چیزیں انسان کے جسم کو نقصان دے وہ بری ہیں. یہ پوری دنیا میں ایسے ہی ہے. اگر یہاں کٹ پاکستان میں انسان کو لگتا ہے یہ بھی برا ہے، اگر امریکہ میں لگتا ہے وہاں پر بھی برا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر میں نے ایک نظریہ پکڑ لیا، ایک سوچ پکڑ لی کہ بھینس کو کاٹ کے کھانا ٹھیک ہے، تو یہ میرے مطابق ٹھیک ہے. وہاں انڈیا میں ٹھیک نہیں ہے، وہاں کچھ اور سوچا جاتا ہے، کچھ اور سمجھا جاتا ہے. تو جو تم نے تھنکنگ پکڑی ہوئی ہے اس میں سچ جھوٹ کچھ نہیں ہوتا. تو سمپلی اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں کچھ بھی، تو صرف اتنا کریں کہ جو کچھ آج تک کر رہے تھے اس پہ ذرا سٹاپ لگائیں، روکیں، دیکھیں ہو کیا رہا ہے. سارے سسٹم کو پہلے ایک ڈیپلی اپنی بیک زندگی میں نظر تو دوڑائیں کہ میں نے آج تک کیا 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 ہے، میں کیا کر رہا ہوں. ذرا دھیان، جب اپنی پوری بیک لائف پہ تم نے ایک نظر دوڑائی اور اس کو نیوٹرلی دیکھا، اور پھر جن جیسا تم بننا چاہتے تھے، یہ ویسے تو ہر انسان مختلف ہے، کوئی کسی جیسا بن نہیں سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ آئیڈیل ہوتے ہیں. پھر تم ان کو دیکھو گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. جب تم ان کو دیکھو گے تو جو ڈیفرنس پیدا ہوگا وہی تمہارا سفر ہے، اور وہی تم طے کرو گے اور وہاں پہنچو گے جہاں تم پہنچنا چاہتے ہو. کیا انسان کو کبھی یہ سوال پوچھنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ جو کچھ اسے اس دور میں مل گیا تھا جب اسے کوئی ہوش و حواس نہیں تھے، تب اسے جو نظریے، سوچ، عقائد ملے تھے، اور پھر پوری زندگی وہ ان کو دہراتا رہا، تو کیا وہ جو چیز تمہیں ملی تھی وہ تم اس قابل ہی نہیں تھے؟ 1-2 سال بچے کو کیا پتہ، تب سے ایک چیز تمہیں ملنی شروع ہو گئی، اور پھر تم ساری زندگی اسی کے گرد گھومتے رہے. تو ایسے بندے کو کنویں کا مینڈک ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟